Morning students, welcome to the history class. Today we are going to start chapter number 7. This belongs to section 3. The name of the chapter is Changing Cultural Traditions. From the 4th to the end of the 7th century, towns were growing in many countries of Europe. A distinct urban culture also developed. Townspeople began to think of themselves as more civilized than rural people. Towns, particularly Florence, Venice, and Rome, became centers of art and learning. Artists and writers were patronized by the rich and the aristocratic. The invention of printing at the same time made books and prints available to many people, including those living in distant towns or countries. A sense of history also developed in Europe, and people contrasted their modern world with the ancient one of the Greeks and Romans. 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में टाउन्स की संख्या बढ़ रही थी। एक विशेष प्रकार के अर्बन कल्चर का विकास हो रहा था। नगर के लोग अब ये सोचने लगे थे कि वे गांव के लोगों से अधिक सिविलाइज्ड हैं। नगर, खासकर फ्लोरेंस, वेनिस और रोम, कला और विद्या का केंद्र बन गए थे। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी मिली थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए। अमीर और एरिस्टोक्रेट लोग कलाकारों और लेखकों के पैटर्न बन गए थे। इसी समय प्रिंटिंग की इन्वेंशन से अनेक लोगों को, चाहे वह दूर दराज नगरों या देशों में रह रहे हों, छपी हुई पुस्तकें प्राप्त होने लगी। यूरोप में इतिहास की समझ विकसित होने लगी और लोग अपने मॉडर्न वर्ल्ड की तुलना यूनानी व रोमन एंशिएंट वर्ल्ड से करने लगे। Religion came to be seen as something which each individual should choose for himself. The church's earth-centric belief was overturned by scientists who began to understand the solar system, and new geographical knowledge overturned the Europe-centric view that the Mediterranean Sea was the center of the world. अब ये माना जाने लगा कि हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुन सकता है। चर्च के पृथ्वी के सेंटर संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत साबित कर दिया, क्योंकि वे अब सौर मंडल को समझने लगे थे। नए ज्योग्राफिकल नॉलेज ने इस विचार को बिल्कुल उलट दिया कि मेडिटेरेनियन सी विश्व का केंद्र है। इस विचार के पीछे ये मान्यता रही थी कि यूरोप विश्व का केंद्र है। There is a vast amount of material on European history from the 4th century: documents, printed books, paintings, sculptures, buildings, textiles. Much of this has been carefully preserved in archives, art galleries, and museums in Europe and America. 14वीं शताब्दी से यूरोपीय इतिहास की जानकारी के लिए बहुत अधिक सामग्री जैसे डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटेड बुक्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, बिल्डिंग्स, टेक्सटाइल्स से प्राप्त होती है, जो यूरोप और अमेरिका के आर्चिव्स, आर्ट गैलरीज और म्यूजियम्स में सुरक्षित रखी हुई है। फ्रॉम द 19th century, historians use the term Renaissance to describe the cultural changes of this period. The historian who emphasized these most was Swiss scholar Jacob Burckhardt of the University of Basel in Switzerland. He was a student of German historian Leopold von Ranke. Ranke had taught him that the primary concern of the historian was to write about states and politics using papers and files of government departments. Burckhardt was dissatisfied with these very limited goals that his master had set out for him. To him, politics was not the be-all and end-all in history writing. History was as much concerned with culture as with politics.
19वीं सेंचुरी के हिस्टोरियन ने रेनेसेंस, जिसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में पुनर्जागरण है, शब्द का प्रयोग किया जो उस काल के सांस्कृतिक परिवर्तनों को बताता है। स्विट्जरलैंड के ब्रेसले विश्वविद्यालय के इतिहासकार जैकब बर्कहार्ट ने इस पर बहुत अधिक बल दिया। वे जर्मन इतिहासकार लियोपोल्ड वान रांके के विद्यार्थी थे। रांके ने उन्हें ये बताया कि इतिहासकार का पहला उद्देश्य है कि वे राज्यों और राजनीति के बारे में लिखे, जिसके लिए वे सरकारी विभागों के कागजात और फाइलों का इस्तेमाल करें। पर बर्कहार्ट अपने गुरु के सीमित लक्ष्यों से असंतुष्ट थे। उनके अनुसार इतिहास लेखन में राजनीति ही सब कुछ नहीं है। इतिहास का सरोकार उतना ही कल्चर यानी संस्कृति से है जितना राजनीति से है। In 1860, he wrote a book called The Civilization of Renaissance in Italy, in which he called his readers' attention to literature, architecture, and painting to tell the story of how a new humanist culture had flowered in Italian towns from the 4th, 14th to the 17th century. This culture, he wrote, was characterized by a new belief. The man, as an individual, was capable of making his own decisions and developing his skills. He was modern, in contrast to medieval men whose thinking had been controlled by the church. 1860 में बर्कहार्ट ने द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसेंस इन इटली नाम पुस्तक की रचना की। इसमें उन्होंने अपने पाठकों का ध्यान लिटरेचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग की ओर आकर्षित किया और ये बताया कि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इटली के नगरों में किस प्रकार एक ह्यूमनिस्ट संस्कृति पनप रही थी। उन्होंने ये लिखा कि ये संस्कृति इस नए विश्वास पर आधारित थी कि व्यक्ति अपने बारे में खुद निर्णय लेने और अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने में समर्थ है। ऐसा व्यक्ति मॉडर्न था यानी आधुनिक था, जबकि मिडीवियल मैन पर चर्च का नियंत्रण था। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज। आफ्टर द फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर, many of the towns that had been political and cultural centers in Italy fell into ruin. There was no unified government, and the Pope in Rome was sovereign in his own state, was not a strong political figure. वेस्टर्न रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनैतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। इस समय कोई भी यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं थी और रोम का पोप, जो अपने राज्य में बेशक सॉवरन था, समस्त यूरोपीय राजनीति में उतना भी मजबूत नहीं था। While Western Europe was being reshaped by feudal bonds and unified under the Latin Church, and Eastern Europe under the Byzantine Empire, and Islam was creating a common civilization for the West, Italy was weak and fragmented. However, it was these very developments that helped in the revival of Italian culture. एक अरसे से वेस्टर्न यूरोप के क्षेत्र फ्यूडल बॉन्ड्स के कारण नया रूप ले रहे थे और लैटिन चर्च की लीडरशिप में उनका यूनिफिकेशन हो रहा था। इसी समय ईस्टर्न यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था। उधर कुछ और पश्चिम में इस्लाम एक साझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। इटली एक कमज़ोर देश था और अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, परंतु इन्हीं चेंजेस ने इटालियन कल्चर के रिवाइवल में सहायता की। With the expansion of trade between Byzantine Empire and the Islamic countries, the ports on the Italian coast revived. From the 12th century, as the Mongols opened up trade with China via the Silk Route, and as trade with Western European countries also increased, Italian towns played a central role. They no longer saw themselves as part of a powerful empire, but as independent city-states. Two of these, Florence and Venice, were republics, and many other were court cities ruled by princes. बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के पोर्ट्स फिर से रिवाइव हो गए।
12वीं शताब्दी में जब मंगोलों ने चीन के साथ सिल्क रूट से व्यापार शुरू किया तो इसके कारण वेस्टर्न यूरोप देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। इसमें इटली के नगरों ने मुख्य भूमिका निभाई। अब वे अपने आप को एक शक्तिशाली साम्राज्य का अंग के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह मानते थे। नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य यानी रिपब्लिक्स थे और अन्य कई दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। One of the most vibrant cities was Venice, another was Genoa. They were different from other parts of Europe. The clergy were not political dominant here, nor were there powerful feudal lords. Rich merchants and bankers actively participated in governing the cities, and this helped the idea of citizenship to strike root. Even when these towns were ruled by military despots, the pride felt by the townspeople in being citizens did not weaken. इनमें सबसे अधिक वाइब्रेंट शहरों में पहला वेनिस और दूसरा जिनेवा था। वे यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि में भी अलग था कि यहाँ पर क्लर्गी और फ्यूडल लॉर्ड पॉलिटिकली ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे। नगर में रिच मर्चेंट्स और बैंकर्स शासन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, जिससे सिटीजनशिप की भावना पनपने लगी। यहाँ तक कि जब इन नगरों में का शासन सैनिक तानाशाह के हाथों में रहा, तब भी इन नगरों के निवासी अपने आप को यहाँ का सिटीजन कहने में गर्व का अनुभव करते थे। नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमनिज्म। The earliest universities in Europe had been set up in Italian towns. The universities of Padua and Bologna had been centers of legal studies from the 11th century. Commerce being the chief activity in the city, there was an increasing demand for lawyers and notaries. To write and interpret rules and written agreements without which trade on a large scale was not possible. Law was therefore a popular subject of study, but there was now a shift in emphasis. It was studied in the context of earlier Roman culture. Francesco Petrarch represented this change. To Petrarch, antiquity was a distinctive civilization which could be best understood through the actual words of the ancient Greeks and Romans. He therefore stressed the importance of a close reading of ancient authors. यूरोप में सबसे पहले यूनिवर्सिटीज़ इटली के शहरों में स्थापित हुई। 11वीं शताब्दी में पादुआ और बोलोग्ना विश्वविद्यालय लीगल स्टडीज़ के अध्ययन केंद्र रहे। इसका कारण था कि इन नगरों में के चीफ एक्टिविटी कॉमर्स और ट्रेड संबंधी थे, इसलिए वकीलों और नोटरीज की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी, क्योंकि वे नियमों को लिखते और उनकी व्याख्या करते और समझौते तैयार करते थे। इनके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था। यही कारण था कि कानून का अध्ययन यानी लीगल स्टडी एक बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। लेकिन कानून के अध्ययन में ये बदलाव आया कि उसे रोमन संस्कृति के कंटेक्स्ट में पढ़ा जाने लगा। फ्रांचेस्को पेट्रार्क इस परिवर्तन को रिप्रेजेंट करते हैं। पेट्रार्क के लिए पूरा काल एक विशिष्ट सभ्यता थी, जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों की वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही जिसे अच्छे से समझा जा सकता है। इसलिए उसने इस बात पर जोर दिया कि इन प्राचीन लेखकों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए। This educational program implied that there was much to be learnt which religious teaching alone could not give. This was the culture which historians in the 19th century were to label humanism. By the early 15th century, the term humanist was used for masters who taught grammar, rhetoric, poetry, history, and moral philosophy. The Latin word humanities
from which humanities was derived had been used many centuries ago by the Roman lawyer and essayist Cicero, a contemporary of Julius Caesar, to mean culture. These subjects were not drawn from one connected with religion and emphasized skills developed by individuals through discussion and debate. इस शिक्षा कार्यक्रम में ये इम्प्लाइड था कि बहुत कुछ जानना बाकी है और ये सब हम केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते। इसी नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने ह्यूमनिज्म का नाम दिया। 15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में ह्यूमनिज्म शब्द उन अध्यापकों के लिए यूज़ होता था जो ग्रामर, रियोटिक, पोएट्री, हिस्ट्री और मॉरल फिलॉसफी सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। लैटिन शब्द ह्यूमैनिटिज्म जैसे ह्यूमैनिटिज्म शब्द से बना है, जिसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील तथा एसेस सिसरो ने, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था, संस्कृति के अर्थ में लिया था। ये सब्जेक्ट धार्मिक नहीं थे बल्कि उस कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति चर्चा और डिबेट यानी वाद विवाद से विकसित करता है। These revolutionary ideas attracted attention in many other universities, particularly in the newly established university in the patriarch's own hometown of Florence. Till the end of 13th century, this city had made a mark as a center of trade or of learning, but things changed dramatically in the 5th century. A city is known by its great citizens as much as by its wealth, and Florence had come to be known because of Dante Alighieri, a layman who wrote on religious themes, and Giotto, an artist who painted lifelike portraits, very different from the stiff figures done by earlier artists. From then it developed as the most exciting intellectual city in Italy and as a center of artistic creativity. The term Renaissance man is often used to describe a person with many interests and skills because many of the individuals who came well known at this time were people of many parts. They were scholars, diplomat, theologian, artist combined in one. इन क्रांतिकारी विचारों ने अनेक विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया। इनमें एक नया स्थापित विश्वविद्यालय फ्लोरेंस था, जो पेट्रॉक का अपना होम टाउन था। इस नगर ने 13वीं शताब्दी के अंत तक व्यापार या शिक्षा के क्षेत्र में कोई खास तरक्की नहीं की थी, पर 15वीं शताब्दी में सब कुछ पूरी तरह बदल गया। किसी भी नगर की पहचान उसके महान नागरिकों के साथ साथ उसकी प्रॉस्पेरिटी से बनती है। फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में 2 लोगों का बड़ा हाथ था। इनमें से एक व्यक्ति थे दांते अलिघिरी, जो किसी धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं थे, पर उन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पर चलाई थी। दूसरे व्यक्ति थे कलाकार जोटो, जिन्होंने जीते जागते रूप चित्र बनाए। उनके बनाए रूप चित्र पहले के कलाकारों की तरह बेजान नहीं थे। इसके बाद धीरे धीरे फ्लोरेंस इटली के सबसे जीवंत बौद्धिक नगर के रूप में जाना जाने लगा और कलात्मक कृतियों के सृजन का केंद्र बन गया। रेनेसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग प्राय उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिसकी अनेक रुचियां हो और अनेक हुनर में उसे महारत प्राप्त हो। पुनर्जागरण काल में अनेक महान लोग हुए जो अनेक रुचियां रखते थे और कई कलाओं में कुशल थे। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति विद्वान, कूटनीतिज्ञ, धर्मशास्त्री और कलाकार हो सकता था। आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।